some elementary question with you. So what do you think about how do you represent a regular language? So there are 4 ways to represent a regular language. One is DFA, other is NFA, another is regular expression, and the last one we discussed in the last class is regular grammar. So if we say if there is a regular language, then there should be a DFA. If there is a DFA, it guarantees that the language accepted by DFA is regular. Okay, so 1-to-1 मैपिंग है, ट्वाइस एरोज की साइन जो बता रहे हैं आप, एरो क्या है, दोनों तरफ है, बाई डायरेक्शन है. इट सेज DFA है और जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है तो वो रेगुलर होगी. अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो गारंटी है कि उसका DFA बन सकता है. ठीक है. Membership questions. Membership question is that given a regular language L and string W, how can we check that W is L? W belongs to L. Simple way, take a DFA and draw a DFA for that language and check that string on that language and that DFA. If DFA accept that language, the string, then it means that the string belongs to DFA. Otherwise, the string does not belongs to DFA. Let's suppose there is a W belongs to L. It means there exists some initial state to final state transition. There exists a transition that leads to from initial state to final state. So we say W belongs to L. If there is no possibility that the W have set of alphabets and that alphabet are organized in such a way that it start from start state to the final state, it means that W is not accepted by the DFA. Indirectly we can say W does not belongs to L. Simple language. How can we check, given a regular language L, how can we check if L is empty? Anybody can respond? Yes. If there is no final state. Good. If there is a DFA without final state. DFA without final state. Take a DFA that accept L. Check if there is any path from the initial state to the final state. If there is no path, it means the language of L is empty. It does not accept anything. So DFA, L is not equal to 5 because there is a one possibility to move on the final state. If there is a no possibility, then this means that language L is 5. The language of machine is nothing. When we say language of machine is lambda, it means initial state is final state. It does not mean language of machine is 5. Null. It is not null. Null string and null language are both different things. Clear? Given a language L, how can we check L is finite? सिंपल सी बात है, इसको बहुत आसान तरीके से. कोई भी पूछा आपसे कोई लैंग्वेज L है और वो क्या है, फाइनाइट है, हो सकता है ऐसे. क्या चेक करेंगे? दो चीज़ें चेक करेंगे. क्या? तो अगर काउंटेबल है, नहीं तो दूसरा पैटर्न चेक करेंगे. क्या पैटर्न? तो सर कोई उसमें पैटर्न बन रहा है तो वो रेगुलर हो सकती है, नहीं तो वो काउंटेबल हो. नहीं, सवाल ये है कि क्या कोई लैंग्वेज फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. कैसे चेक करेंगे कि ये फाइनाइट है? उसकी स्टेट डिफाइन नहीं. एनीबडी एल्स? लूप? हाँ हाँ, ना हो. कोई भी लूप ना हो, कोई भी लूप ना हो अगर, तो हम कहेंगे लैंग्वेज क्या है, फाइनाइट है. अगर एक भी लूप है तो वो लैंग्वेज इनफाइनाइट है. ठीक है. टेक ए DFA दैट एक्सेप्ट L. चेक इफ देयर इज ए वॉक विथ साइकिल फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट, तो हम क्या कहेंगे, इट्स अ फाइनल स्टेट. ठीक है. सो वी कैन से दिस इज ए फाइनाइट, अदरवाइज इट इज अ इनफाइनाइट. L is a infinite. L is infinite we means that there is a no loop. अगर हम लूप खत्म कर देंगे तो ये फाइनाइट हो जाएगी, और अगर लूप नहीं है तो, लूप है तो इनफाइनाइट है. बस लूप हेल्प करेगा आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिसाइड करने में. Given a regular language L and L2, how can we check that if L1 is equal to L2? Simple, we use De Morgan law. De Morgan law क्या होता है? If L1 intersection complement of L2,
union with L1 intersection L1 complement intersection L2, and the whole result is null. It means what it means? Both language are equal. Otherwise they are not equal. So simple way to check is that and यूनियन को हम कन्वर्ट कर देंगे क्या है, दोनों की कंडीशन है, दोनों पार्ट चेक करने हैं. अगर इसका आसान हिस्सों में तोड़ेंगे, L1 इंटरसेक्शन L2 के कॉम्प्लीमेंट के साथ फाई हो, या L1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2 के साथ फाई हो, और ये दोनों में से किसी एक में आ जाए और एक में ना आए, फिर भी वो इक्वल नहीं है. दोनों ही नल हो, दोनों ही क्या है रिजल्ट हो, नल हो, फाई हो, एम्प्टी लैंग्वेज हो, तो हम कहेंगे बोथ आर इक्वल. इसकी एग्जांपल यूँ समझ लें, अगर हम बोले कि L1 सबसेट है L2 का और L2 सबसेट है L2 का L1 का, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों लैंग्वेज इक्वल होंगे. अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि L1 सबसेट है L2 का और L2 सबसेट है L1 का. इट मीन्स कि हमारे पास जो ये L1 है इसमें वो सारे एलिमेंट हैं जो L2 के हैं, यहाँ कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, और यहाँ पे L2 में वो सारे एलिमेंट हैं जो L1 में हैं. इट मीन्स दे आर कंप्लीटली ओवरलैपिंग, तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं. देन वी कैन से L1 इज इक्वल टू L2, अदरवाइज नॉट. अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, आर कर लें, मतलब दोनों में से एक नल है या दूसरी नल है, दोनों नहीं हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, हमारी लैंग्वेज बराबर नहीं होंगी. यहाँ देखें, L1 इज़ नॉट सबसेट ऑफ L2 और L2 इज़ नॉट सबसेट ऑफ L1. कोई एक सिचुएशन भी हो जाए तो दोनों लैंग्वेज बराबर नहीं होंगी. अगर एक सेट के अंदर 1000 एलिमेंट है और दूसरे सेट में 1001 है, तो दोनों बराबर नहीं हुई ना. तो एक सेट छोटा हो गया, दूसरा सेट बड़ा हो गया. तो एक स्ट्रिंग भी ऐसी हो जो एक सेट में हो दूसरे में ना हो, तो ऐसा नहीं होगा कि L1 इज सबसेट ऑफ L2 या L2 सबसेट ऑफ L1. सो इन सच अ वे वी से दैट L1 इज नॉट इक्वल टू L2. नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की बात करें, नॉन रेगुलर लैंग्वेज कौन सी होती हैं, जो रेगुलर ना हो, और रेगुलर कौन सी होती हैं, जिनका NFA DFA रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर ग्रामर बन सके. कैसे चेक करेंगे कि रेगुलर नहीं है. सम टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि हम NFA DFA बना रहे हो, ना बन रहा हो, हमें समझ में ना आ रहा हो, हम कहते हैं रेगुलर नहीं है. ऐसा नहीं है, हमें चेक करना होगा उसको सम प्रूफ के साथ. अगर हम बोलेंगे किसी को रेगुलर नहीं है ये, तो वी हैव टू प्रोवाइड ए प्रूफ. सो वी कैन से जब हम डिस्कस करते हैं जो पैटर्न्स बन जाए हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के, वो सारे के सारे रेगुलर लैंग्वेजेस हैं. इसके बाहर भी लैंग्वेज हैं, और वो कौन सी है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज. AN BN वन ऑफ द एग्जाम्पल, जिसमें ये नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B बराबर हों, उसके लिए हम रेगुलर लैंग्वेज नहीं बनना कहते उसको, और ना ही उसका NFA DFA बन सकता. इसी तरह WW रिवर्स या VV रिवर्स ऐसी लैंग्वेज है जो NFA DFA नहीं बनाया जा सकता. हाउ कि वे कैन वी प्रूव दैट लैंग्वेज L इज़ नॉट रेगुलर. इसको प्रूव करने की सिंपल टेक्निक क्या है, प्रूव दैट देयर इज़ ए नो DFA दैट एक्सेप्ट L. और ये कहना कि नहीं एग्जिस्ट करता इज़ नॉट ए ट्रिवियल, उसको हम प्रूव बाय कंट्राडिक्शन से करेंगे. प्रूव बाय कंट्राडिक्शन क्या है, दिस इज़ नॉट एन ईजी टू प्रूव कि नहीं एग्जिस्ट करता. कैसे कहोगे नहीं एग्जिस्ट करता, तो आपको उल्टा ले लेंगे, आप कहेंगे लेट्स सपोज देयर एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, बनाना शुरू करेंगे, और फिर आखिर में फेल हो जाएंगे और बोलेंगे देखो नहीं बन सकता. और बनाना शुरू करने का तरीका क्या है कि आप यूज़ करेंगे वो पॉलिसीज़ जिससे से किसी भी DFA को बनाया जा सकता है, और उनकी जो पॉसिबल आकरेंस होती है स्ट्रिंग की, उनकी हम पैटर्न बनाएंगे. वो पैटर्न कहलाता है पंपिंग लेमा, और पंपिंग लेमा के रूल को फॉलो करते हुए जो होगा वो कहेंगे हम गुड है, फॉलो कर रहा है. जो नहीं फॉलो कर रहा है, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गई, एक पॉसिबिलिटी मिल गई, तो हम कहेंगे कि नहीं बन सकता. एक पॉसिबिलिटी मिलने को तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी मिल जाएंगी, बट एक पॉसिबिलिटी मिल जाए तो काफ़ी है. जैसे हम कहते हैं सिलेक्ट करने के लिए 1000 खूबियाँ भी कम, रिजेक्ट करने के लिए एक खामी भी काफ़ी है. क्लियर. तो सोल्यूशन द पंपिंग लेमा, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसको.